Hello friends, in this video I'm going to talk about Sociology optional strategy. My name is Vishal. I scored 329 in Sociology, which is the highest all India. I also secured rank 63 in this UPSC Civil Services examination. When it comes to Sociology as a strategy, I primarily relied on self-study. I didn't went for any coaching. So I will tell you my journey from 2017 attempt to 2018 attempt, and how I improved my score from 281 in the 2017 attempt to 329 in the 2018 attempt. First of all, when it comes to narrowing down my optional as Sociology, I went the normal steps that is being used by most of the toppers and most of the aspirants. First, I went through the syllabus of all the optional subjects. सबसे पहले मैंने ये देखा कि तीन ऐसी ऑप्शनल हैं जिसकी सबसे छोटी सिलेबस है. फर्स्ट इज लॉ, सेकेंड इज एंथ्रोपोलॉजी एंड थर्ड इज सोशियोलॉजी. लॉ का जो पेपर 2 है, मैंने फिर प्रीवियस पेपर तीनों का मैंने देखा, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो लॉ का पेपर 2 है उसके लिए वन नीड्स टू बी वेरी मच व्हाट वी कॉल acquainted with the actual scenario in courts. So kind of internship might be required to score par excellence. So that's why I didn't went with law, although the first paper 1 syllabus was quite similar with what we would be studying in paper 2. After that I went with the anthropology syllabus. Anthropology syllabus was very what we call less, it was small. However, when it comes to certain aspects of paper 2, I felt that I won't be having much of any resources, so I didn't went with that. When it comes to sociology paper 2 and paper 1, what I saw is that most of the questions that were there in the previous paper, I was able to solve with my own what we call knowledge at that time when I was starting the preparation. So that's why I ultimately decided that I would be going with sociology as an optional. Moving ahead, like what are the good advantages or what are the advantages of having sociology as an optional? First of all, there is overlap in syllabus. The syllabus overlaps with the social issues which come in GS paper 1 and the sociology optional. Apart from that, GS2 and GS3 also, if one is aware of the society very well, he would be able to understand why government is coming with certain policies, why it is taking certain steps, what kind of section from the vulnerable section of the society. All these things can be understood in a better manner if one is well versed with sociology. Apart from that, in essay also, questions usually comes from one question would be for the marginalized section, let it be gender equality or women empowerment, and all those questions, or let it be poverty or anything. Most of the social issues are also issues that is faced by an administrator. So all this thing usually comes what we call very handy when it comes to if you know sociology. So that's why even now the pattern has changed in the essay. Most of the question are philosophical format, and still I would say sociology as an optional had helped me in writing a good answer in terms of essay. Apart from that, if we talk about GS4, similar things applies, because as an administrator you should know which are the vulnerable section to whom we should put in priority when it comes to providing aids and relief. So all this thing on a whole, sociology would offer you very good optional to go ahead with in what we call the civil service examination. When it comes to strategy, so my strategy has been something of a sort of firefighting, and honestly I didn't plan that I won't be going for coaching. It happened because of the circumstances in which I was placed in. Initially what happened is that in 2017 attempt I thought I won't be able to clear my what we call prelims. So I was pretty much what I planned was that after prelims, if the prelims went good, I would go with any of the popular crash course which is available in the market, and I would join it and I would finish my sociology syllabus. However, when things were pretty much in dilemma, dicey, I was not sure whether I would clear what we call prelims or not. So I was just what we call strolling or maybe just relaxing a bit till the result. And when the result came, thankfully I cleared. So it was like for me it was a big thing, because of course what we call I never once my thought was that I won't be clearing, and now I have cleared the prelims. So, and one thing that got me lucky was the pre-pond prelims was pre-pond for the first time, and mains was held during the
during near about the same period only, as a result of which we had this extra half month or 1 month around, which usually in other years candidates didn't got. So that helped me, that was actually a pretty much a plus point in that year when I was giving. I could actually recollect that it was August 30, the last day of DAP submission, and after that only I went to meet my friends who had sociology as an optional, and they were connected to me via my senior, and they were I went there and I told them that I want 400 in my optional, and they were laughing like anything, because yes, of course I was naive at that time. मुझे ये नहीं पता था कि 400 आज तक कोई टॉपर ने नहीं लाया है, और या फिर मतलब ऐसा कोई हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या तुम्हें पता है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर फॉर्मेट कैसा होता है। तो इट वाज लाइक आई डिडंट न्यू दैट एट दैट टाइम कि एक क्वेश्चन पेपर में 1 और 5 कंपलसरी होते हैं, शॉर्ट आंसर लिखने पड़ते हैं उसमें 10-10 मार्क्स के, और उसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें पार्ट ए पार्ट बी से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इवन आई डिडंट न्यू द फॉर्मेट। सो बेसिकली दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इट इज़ अगस्त 30 सितंबर 27 से हमारा अक्टूबर 27 से हमारा what we call main शुरू होने वाला है। So that is the thing. So 2 months is there only left, and I am here without knowing anything about sociology. But that is where faith comes in, and especially when you clear prelims, then some kind of more energy is there with you. So you are pretty much happy, you are excited to do things. So belief was there so much. So I felt ki no, I have to do. So I went home, and as suggested my seniors, I went with the Tushranshu Sharma shared notes. He is all India rank 72, joins 14. So I went with his notes. The notes were pretty much concise because it covered almost all part of the syllabus, paper 1 as well as paper 2. In total there were 600 pages. I can recall it exactly because I planned that I would be covering 30 pages daily, and then yes, of course, I started reading 30 pages or 40 pages daily. I was not feeling like usually people have this idea that one should be knowing concepts and everything, but I somehow felt ki okay, to a certain extent you have to make a compromise, and if you are able to compose an answer very well, then you should not be too much going into depth of any of the concepts also, then also it's totally fine. And that was my opinion which I formed. So once I went ahead with the questions of sociology and finished my syllabus, of course the Tushranshu Sharma notes, and then I went with the previous year paper. I started giving the previous year paper, I started writing them. At that time, अगर आपको सभी को पता हो कि most of the test series तो उस समय तक ख़त्म ही होने वाली होती है, it's usually the fag end of the test series. तो अगर मैं उस समय ज्वाइन करता तो मैं काफ़ी डिस्करेज हो जाता, मेरे को लगता कि अरे यार मेरे को तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि और सब जो बच्चे दे रहे होते तो दे वुड हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, सो दैट वुड हैव बीन ए बिट ऑफ ए सेटबैक फॉर मी. सो it's like keeping yourself very much calm and keeping yourself in a pleasant state, and not taking challenges which would, rather than improving you, would just discourage you. So as usual, people would say that I am from rural background or somewhere. So we never count. We actually, it's said, we cannot count on what we don't have. We always count upon what we don't have. We cannot count upon that. जो नहीं है उसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते, जो है उसी के ऊपर हमें बढ़ना होता है. तो मुझे लगा कि इफ़ मेरे पास यही समय है और मेरे पास यही रिसोर्सेज है, तो मैं क्यों इससे आगे नहीं बढ़ूँ. तो फिर मैंने वही प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो मैं ज्वाइन कर नहीं सकता था उस समय, काफ़ी लेट हो चुकी थी. तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर शुरू किया सॉल्व करना. मैंने फ्रेंड्स लोग से चेक कराया, मेरे फ्रेंड्स से जासिर और अमिर, वो रेगुलरली मेरा क्वेश्चन पेपर चेक कर देते थे. उसमें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करके रखें तो देन यू थोड़ा 3 घंटे में लिखना, बैठ के लिखना. यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि हाँ उतनी देर में हो जाए. तो वो सारी चीज़ आपको काफ़ी बैलेंस होना पड़ता है. तो वो सारे डिसिप्लिन अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है, और उस समय ज़रूरत भी काफ़ी होती है. तो वही उसी के बेसिस पे मैंने पूरा तैयारी की, और फ्रेंड्स लोग का थैंकफुली जो सजेशन रहा. फिर मेरे में ऐसा हो रहा था कि क्योंकि वो डेरिवेटिव नोट्स था, तो ऐसा हो सकता था कि उसमें वर्ड्स जो थे, इट वाज नॉट क्वाइट व्हाट वी कॉल सोशियोलॉजिकल टर्म्स, टू बी वेरी प्रिसाइज. फॉर एग्जांपल, अगर CW मिल्स का अपन वो थ्योरी देखें, एलिट पावर एलिट का थ्योरी, तो देयर आर फ्यू टर्म्स लाइक दैट ही हैज़ यूटिलाइज्ड, लाइक
what we call landscape, industrial landscape or corporate landscape changing, or again the terminology I would say, pivotal point in a corporate. So all these things were pretty much good terminology that one should be utilizing when one is answer writing. So उससे एक प्रतीत होता है कि हाँ this guy has written very well, has studied very well, So उसके लिए मैंने फिर ऑरेंज बुक शुरू किया, जो मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलता था, क्योंकि इस समय जीएस भी देखना होता है, ऐसे भी देखना होता है, ऑप्शनल भी देखना पड़ता है, और ऑप्शनल में पहली बार ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो जो थोड़ा मेरे में समय निकल पाता था हाफ एन आवर मोस्टली, तो जो ऑरेंज बुक होता था, एक हार्ड लॉम्बस एंड हील्ड है, यूजुअली सभी को ही बोलते हैं कि हार्ड लॉम्बस और हॉल बोन पढ़ना चाहिए, जो कि ब्लू बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, तो वो मुझे तो बिल्कुल भी समय नहीं थी, तो मैंने ऑरेंज बुक से काफ़ी सिलेक्टिव स्टडी की थी। जैसे कि थिंकर्स मैंने देख लिए थे, जो थिंकर्स उसमें अवेलेबल हैं, तो वो सारे थिंकर्स को मैं देख लेता था। उसके बाद फिर जो पॉपुलर थ्योरीज हैं उनके टर्म्स में देख लेता था, तो इससे और वो सब टर्म्स को अंडरलाइन करके मैं पूरा याद कर लेता था ताकि लिख पाऊँ उसको अच्छी तरह से। तो इस तरीके से मेरा मतलब होते रहा। और नोट्स का मैं जैसे कि हाँ, अगेन इफ यू कम टू द स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग नोट्स, मैं हमेशा ये ध्यान देता था कि ऑप्शनल में हमें छुट्टी नहीं मिलती है, वी डोंट गेट ए गैप। अप टू 2017 दैट वाज द सिनेरियो कि ऑप्शनल में गैप नहीं होती थी, वन डे गैप मिलता था। तो वन डे में यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि वन डे में वो चीज़ रिवाइज हो जाए, और मतलब ऐसा भी हो सके कि आपको फील हो रहा है, तो पेपर टू जो आप देंगे, तो पेपर 2 से पहले अराउंड आपको 1 आवर ऐसा 1.5 आवर जो गैप मिलता है, तो इसमें आपका पेपर 2 भी रिवाइज हो जाए। तो अगर ये चीज़ दोनों चीज़ आपके ध्यान में है, तो आप नोट्स काफ़ी कॉन्साइज बनाएंगे। आपका एक जो मॉड्यूल होगा उसका, जैसे सोशियोलॉजी एज ए साइंस एंड व्हाट वी कॉल इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस और समथिंग, तो ये सारे जो चीज़ हुई, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसका एक पेज का हार्डली नोट्स होना चाहिए। काफ़ी कॉन्साइज, काफ़ी ससेंट एकदम आपको नोट्स बनाना है, जो कि आप मतलब फटाफट एकदम, जो आपका मतलब जस्ट प्रायर टू द डे दैट यू आर अपेयरिंग फॉर ऑप्शनल, यू शुड बी प्रिटी मच ईजी, यू शुड बी ईजिली आप उसको पूरा कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका नोट्स काफ़ी कॉन्साइज होगा। और एक तरीका जो मैं काफ़ी इस्तेमाल करता था कि हाँ, मतलब उससे नोट्स मतलब काफ़ी ये हो जाए, नोट्स मतलब व्हाट वी कॉल काफ़ी कॉन्साइज रहे, तो मैं जब पढ़ता था तो उसके बाद रिवाइज उसी समय कर लेता था। फॉर सपोज आई रीड ए टॉपिक अबाउट पावर एलिट्स, देन आई वुड जस्ट रिवाइज इट जस्ट आफ्टर डैट। ऐसा नहीं होता था कि हाँ मैं 2 दिन बाद रिवाइज कर रिविजन का शेड्यूल होता था, मेरा हमेशा उसी समय रिवाइज करता था। तो इससे ज़्यादा चीज़ रिकलेक्ट भी होती थी, और जो नोट्स बनते थे वो काफ़ी शॉर्ट होते थे। तो इस तरीके से मैंने आंसर राइटिंग, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से देखा, नोट्स मेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जल्दी जल्दी रिविजन करनी चाहिए, तो उससे आपका कम होगा। और अगेन मतलब क्या बोलते हैं, नोट्स जो कि मैंने तो शर्मा सर का नोट्स, और उसके अलावा ऑरेंज बुक और लंबस का इस्तेमाल किया था। डिटेल स्ट्रेटजी मैंने ऐसे फॉर बिगनर्स मैंने टोटली डाल के रखा है मेरे ब्लॉग में, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसके अलावा जब आप जाते हैं कि हाँ अब आप किस तरीके से रिलेट करें, तो वन थिंग जो कि मैं आई इंश्योर डैट कि बिल्कुल मतलब इट शुड बी डैट what we call one thing that I went with the rule of thumb in my 2017 attempt was that no distinction between paper 1 and paper 2। मतलब मैं सोचता ही नहीं था कि ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। If to make questions answers comprehensive, I would like inculcate things which is from paper 2 also। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जैसे कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे आ गया, हाउ डिड सोशियोलॉजी इमर्ज। तो यूजुअली अपन क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसे व्हाट वी कॉल यूरोप तक। यूरोप में कैसे अगस्त कॉम्ट ने और व्हाट वी कॉल एम.एल. दरकिम, इन्होंने कैसे मतलब इस्तेमाल, हाउ डिड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अपन, और वो जो रिनेसेंस पीरियड एंड एवरीथिंग, वी लिमिट आवर आंसर टू दैट। But I went ahead. I was like, no, we can, even in India also sociology emerged in certain manner, and interestingly it was on a very different footing, it emerged and a diverse footing। For example, कोई एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया करना चाहते थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करना चाहते थे, उसके लिए स्टडी हुआ था सोसाइटी का। कोई रिएक्शन के कारण, जैसे जी.एच. प्योरी सर थे, ही रिएक्टेड अगेंस्ट द व्हाट वी कॉल इम्पेरियल डोमिनेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। सो ऑल ओवरऑल मतलब कि काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स के कारण इंडिया में सोशियोलॉजी मतलब इमर्ज हुई थी। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो मैं सोशियोलॉजी को फिर मतलब कि मैंने वही पेपर 1 और पेपर 2 का डिस्टिंक्शन बिल्कुल हटा दिया था, और कोई क्वेश्चन पूछता था तो मैं सभी चीज़ इनकलकेट करता था। नो डैट वेंट विथ मतलब मेरा 2017 अटेम्प्ट में था। मेरे पेपर 1 में उस साल 158 आए थे, पेपर 2 में 152 आए थे, पेपर 2 में 153 आए थे पेपर 1 में, और पेपर 2 में मेरे 128 ही रह गए थे। तो अगेन जैसे कि मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सजेस्ट किया कि ऐसा कैसा हो सकता है, यूजुअली ऐसा होता है कि पेपर 2 में इज़ मोर स्कोरिंग,
तो पीपल स्कोर मोर ऑन पेपर 2. तो डैट इज़ यूजुअली केस. तो मेरे को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो देन अगेन मुझे जैसा कि हुआ, जैसा सरांशु सर का जो नोट्स था उसमें काफ़ी सारे थिंकर्स थे पेपर 2 में. बट व्हाट यूजुअली हैज़ टू हैपन इज़ दैट क्योंकि काफ़ी रिसर्च हम लोग का डॉक्यूमेंटेड हुआ नहीं इंडियन सोसाइटी का, तो वो डाइवर्स नहीं हो पाता था. तो इट यूज टू बी वेरी मच लिमिटेड. तो आप ना डिफरेंट फैसेट्स नहीं, अगर आप सिर्फ थिंकर्स के बेसिस पे आंसर लिखेंगे तो आपका जो आंसर है काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा. आपका आंसर काफ़ी मतलब कि व्हाट वी कॉल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा. तो जब मैं ये चीज़ प्रॉब्लम मुझे लगा कि ये कारण हो सकती है कि अगर मैं मतलब सिमिलरी थिंकर लिख रहा हूँ, मतलब सिमिलरी पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ 2 डिफरेंट थिंकर का, तो दैट डजंट मेक मच ऑफ ए सेंस, दैट डजंट ब्रिंग द डाइवर्सिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए आंसर वेरी प्रिटी मच होल इन पेपर 2 में भी. पेपर 1 तो काफ़ी सारे थिंकर मिल जाते हैं, तो इवन इफ़ यू राइट ऑल द थिंकर्स देन तो मतलब कि आपका काफ़ी होलसम आंसर तैयार हो जाएगा. तो इन दैट यू डोंट हैव टू वरी मच. सो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन था, तो मुझे फिर एक नया मंत्र मैंने बनाया पेपर व्हाट वी कॉल 2018 अटैम्प्ट के लिए. इंटरव्यू देना था, फिर उसका रिजल्ट्स आ गए थे, तो प्रीलिम्स आ गया था, तो कुछ खास समय नहीं मिला 2017 के बाद मुझे नए बुक ऐड करने के लिए. तो मैंने वही सोचा था कि मेरा मतलब कि आई शुड बी अगेन मेकिंग व्हाट वी कॉल बेस्ट यूज ऑफ माई नोट्स, द लिमिटेड मटेरियल्स दैट आई हैव, एंड कंपोजिशन काफ़ी इम्प्रूव करना है. तो वही कंपोजिशन इम्प्रूव करने के लिए इस बार मैंने सोचा कि कैसे डाइवर्सिटी लिखूँ. वन ऑफ द मंत्रा डेट आई यूज्ड वाज लाइक थिंक लाइक जीएस, राइट लाइक ऑप्शनल. तो मतलब अगर आप जीएस की तरह यूजुअली पेपर 2 में काफ़ी वर्क करते हैं, तो अगर आप जीएस की तरह सोचेंगे तो आपको पेपर 2 में का आंसर काफ़ी वैरायटी बन जाएगा. फिर उसमें अगर अपना कोई थिंकर एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको आप डाल लीजिए, तो इससे एक सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव का आंसर भी बन जाएगा. अब आप डायरेक्ट जीएस के आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो उसको सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव में डालने के लिए आपको उसमें कोई थिंकर अगर आपको याद आ रहा है या फिर मतलब कोई केस स्टडी याद आ रहा है उसको डाल लीजिए. तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, इफ़ यू गो थ्रू दैट, तो देन इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल. यूजुअली मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देता था, प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी सॉल्व करता था. तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए ऐसा होता था कि मतलब कि मैं सॉल्व पेपर इस्तेमाल करता था. सॉल्व पेपर अगर जैसे कि मिलता है मार्केट में, सॉल्व पेपर से क्या होता है कि पहले से अच्छे खासे नोट्स मिलते हैं इसमें. तो लाइक हाँ मतलब ठीक है, ऐसा अच्छा नोट्स उसमें पहले से होंगे. तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने एक ही सोर्स इस्तेमाल किया है, तो you might feel कि हाँ अरे यार I didn't went for multiple sources, so is my what we call information sufficient, so in that case if you have a solved previous year paper book, so then you will get sufficient number of information from that book also. And since I did coaching, so what I used to do is that I used to solve the previous year paper with my friend. She did coaching, so she used to have this diverse perspective of her what she learned. So ऐसा होते होते like small somehow I used to what we call as I say कि फायर फाइटिंग कुछ भी करके बेस्ट मतलब अपना समय को निकालना. तो लास्ट टाइम कुछ मुझे 1 महीना लगा था ये सब चीज़ करने के लिए. 2017 में 281 आ गए थे. 1 महीना 20 दिन मतलब 20 दिन ही करीबन निकला था. 20-25 दिन में हो गए थे मेरे सोशियोलॉजी. और इस बार मैंने उससे भी कम में लगाया कि मेरे हार्डली मतलब जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का नोट्स है मैं ब्लॉग में डाल दूंगा. बेसिकली अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया ब्लॉग में, पर मैं सैम्पल नोट्स डाल दूंगा. मेरे नोट्स थे केवल 25 या 26 पेज के पेपर 1 प्लस पेपर 2. तो आप समझ सकते हैं कि उसमें रिवाइज करने के लिए खास कोई समय नहीं मिलता है. और इस बार मैंने जैसे कि एक तो ये मंत्र हो गया थिंक लाइक जीएस, राइट लाइक ऑप्शन. दूसरा एक मंत्र था कि मैंने जीएस के काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल किया था. जैसे इस बार का क्वेश्चन आया था कि सुसाइड का क्वेश्चन, तो मैंने सुसाइड के क्वेश्चन में फटाफट वो डाले थे, क्या बोलते हैं एनसीआरबी का जो डेटा होता है कि हाँ विच काइंड ऑफ किस कारण के सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं. तो वो फैक्ट्स और फिगर पूरा ग्राफ बनाया था मैंने, तो वो हो जाता था. और इवन एक्चुअली मेरा वही चीज़ रहता था एम व्हेन आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि एडिटोरियल्स में हमेशा मतलब डेरिवेटिव मतलब कि कोई भी ऑनलाइन मतलब लर्निंग स्पेस या फिर लर्निंग स्पेस से मैं करता था. बट आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आजकल जो एडिटोरियल डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में करते हैं, तो वो काफ़ी रेडीमेड होता है. तो डेरिवेटिव मटेरियल से मैं एडिटोरियल्स कर लेता था. तो मैं व्हेन आई यूज्ड टू राइट ऑप्शनल और जीएस दोनों के मैं न्यूज़पेपर से मैं केवल केस स्टडी ढूंढता था. ऐसे केस स्टडी जो कि मैं राइट कर लिखूं, कोट करूं, उससे क्वेश्चन आंसर और सुंदर लगे और बेटर लगे. तो ये सारे चीज़ मतलब कि क्या बोलते हैं मैं करता था. और हल्का सा थोड़ा सा करेज भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं जो रिस्क लेता था, जैसे कि कोई एरिया में मुझे ये नहीं पता था कि थिंकर ने क्या कहा है, या फिर ये कोई स्कूल कॉन्फ्लिक्ट स्कूल होता तो क्या होता है. तो मतलब मुझे ऐसा बेसिक आइडिया था कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है तो कुछ बड़े लाइक इट वुड बी सेइंग बैड थिंग्स ओनली, जो ज़्यादा चेंज पे मतलब ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे. फंक्शनल स्कूल है तो ज़्यादा स्टैटिक पे मतलब हाउ वाई कॉन्टिन्यूटी इज़ देयर, तो उस पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे. तो अगर ये सारे चीज़ आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया होगा तो आप थोड़ा रिस्क लेकर के लिख सकते हैं उसके बारे में आपके पेपर में. तो
इन टोटल एज आई सेड व्हेन इट कम्स टू मतलब क्यों सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल लेना, दूसरा क्या क्या ओवरलैप है सोशियोलॉजी का वो मैंने बताया, और यस ऑफ कोर्स फिर मैंने बताया आपको कि किस तरह से स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। इवन हिस्ट्री ऑफ अभी तक कोई इतना हाईएस्ट मार्क्स आए नहीं है, और ये पॉसिबल अगर सेल्फ स्टडी से मैं कर सकता हूँ तो आई बिलीव ये मैसेज है सभी को, यू नो, इन अ लिमिटेड टाइम अगेन इट्स अ मैसेज टू पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल हु थिंक्स दैट दे डोंट हैव टाइम, or people who are living in rural areas who feel that, you know, I won't be I don't have coaching and everything. The people who you know with good background are sitting there and, you know, what we call they are getting materials from what we call a good institute. I would say these all are only, you know, self put doubts, and, you know, these are all self made blocks that we make in our own way. If you feel कि नहीं किया जा सकता है, and as I said in my case it has happened with very limited amount of time and limited resources, I would say it is possible in your case also. So for more updates, just, you know, be connected with me on my Telegram channel and as well as my blog, in which I will be putting my answers also, and you will be able to connect with me through those channels. Thank you.